Good morning, students. Today we will start with our topic, that is the cells of the immune system. Cells and tissue we will discuss in this topic, and the organs of the immune system and the different tissue also we have studied in our class and practical class also. So coming to the cells of the immune system, there are two types of cells which are present in immune system. One is the cells present in the innate immune system, and another are the cells of the adaptive immune system. So if we talk about the innate immune system, you all know what is the difference between the innate and the adaptive immune system. This we have also studied in detail in our class also. So the cells of the innate immune system includes the phagocytes, the mast cell which are present in the connective tissue, the blood platelets, you all know, and the NK cell, that is the natural killer cells. And the phagocytes, they are also of different types. We have also studied these phagocytes in our class also. Kupffer cells, they are the phagocytes which are present in the liver, and other phagocytes are also there, such as the microglial cells which are present in the nervous system, and the alveolar macrophages are also the phagocytes which are present in the lungs. So different types of phagocytes we have studied. Some phagocytes are these, that is the polymorphonuclear granulocytes. These are the blood cells which have the granules in them. So the examples are the neutrophil, basophil and eosinophil. So in this chapter we will study the structure of all these cells in detail. Now coming to the cells of the adaptive immune system, that includes the APC, that is the antigen presenting cell, lymphocytes, you all know that lymphocytes are of two types, B cells and the T cells, and lymphoid tissue. Lymphoid tissue ये हमने पहले कर लिया क्लास में. The primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organs and the different tissue. The primary lymphoid organ includes the thymus, where the maturation of the T cells take place. Bursa, where the maturation of the B cells that takes place. Fetal liver, this is the organ where in fetal conditions the formation of the B cells and the T cells that takes place, and bone marrow, where the maturation of the B and T cells that takes place in the adult. B cells that takes place in the adult. Now secondary lymphoid organs, you all know what are secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs are the organs where the actual interaction of the B cells and T cells that takes place with the antigen. So it includes the spleen and lymph nodes, which are the major secondary lymphoid organs, and another are the calt, malt, which includes the Peyer's patches, tonsils and appendix also. So this is an overview of the cells and organs of the immune system. So organs हमने कर लिए हुए हैं. अभी इस टॉपिक में today we will discuss the cells of the immune system, such as the phagocytes, mast cell, blood cells, NK cells and all the cells. And the most important is the B cells and the T cells. So जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में, वो मैंने आपको क्लास में भी बताया बार बार कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी सेल्स एंड द टी सेल्स. ये आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 या 5 मार्क्स का. और जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो आ सकता है नोट ऑन द फेगोसाइट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनी ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन द नोट ऑन द मास्ट सेल, और समटाइम एपीसी कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. सो ये सारे सेल्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक अबाउट द हेमेटोपोइसिस. ये हेमेटोपोइसिस के ऊपर कई बार क्वेश्चन बच्चों क्लास में आपके पेपर में आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स का आता है. तो आपने बहुत डिटेल में इसको नहीं करनी है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट टेक्स प्लेस, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो आपको पता होना चाहिए. जो हमारा हेमोपोइटिक टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं इन अडल्ट्स, जो लॉन्ग बोन्स का बोन मैरो है वहीं पर हमारा हेमोपोइटिक टिश्यू प्रेजेंट है. एंड द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट है. स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू गिव राइज to the different types of the cells. So hemopoietic stem cells are present in the bone marrow of the long bones. In case of the adults of the humans, it give rise to different types of the blood cells. ठीक है, यहीं पर ही different types of blood cells बनेंगे, और इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो भी क्या हैं, आपके ब्लड सेल्स ही हैं. सो दिस हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट विल डायरेक्टली गिव राइज टू द प्रो बी सेल्स और द प्रो टी सेल्स. ये जो बी सेल्स और टी सेल्स जो बन गए हैं, ये अल्टीमेटली फिर कहाँ पे जाएंगे, इनकी मैचुरेशन होगी. जैसे कि इसकी मैचुरेशन तो आपकी बोन मैरो ही होगी. ये देखो, ये वाला जो रेक्टेंगल है इट इज रिप्रेजेंटिंग द बोन मैरो, और इन केस ऑफ द फीटल कंडीशन इट इज रिप्रेजेंटिंग द फीटल लिवर.
ठीक है, तो बी सेल्स की फॉर्मेशन यहां पर ही हो रही है, बोन मैरो में ही हो रही है, और इसकी मैचुरेशन पे भी जो है वो हमारी बोन मैरो में ही हो रही है। मैचुरेशन के बाद जो बी सेल्स है दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लड सर्कुलेशन। सो बी सेल्स वंस फॉर्म्ड गेट मैच्योर इन द बोन मैरो एंड देन दे आर रिलीज्ड इन द blood circulation. Similarly, the T cells, they are also formed in the hematopoietic stem cells and then they are matured. वो उसकी मैचुरेशन कहाँ पे हो रही है, आपकी थाइमस में हो रही है। थाइमस में मैचुरेशन के बाद जो है उनको ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड दे आर देन रिलीज्ड इनटू द ब्लड। उसके बाद वो कहां पे भेज दिए जाएंगे, आपके टिश्यू में। जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टिश्यू को। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स थोड़े टाइम तक ही ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं, उसके बाद उनको जो है वो टिश्यू में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह के आपके बाकी सेल्स भी हैं, जैसे आपके प्लेटलेट्स। द प्लेटलेट्स दे आर फॉर्म्ड एज दी मेगाकैरियोसाइट्स। पहले ये इस तरह के सेल्स बनेंगे जिसे मेगाकैरियोसाइट बोलते हैं, और उसके बाद इन मेगाकैरियोसाइट से आपके प्लेटलेट्स बनेंगे और प्लेटलेट्स आर देन रिलीज्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन। नाउ द नेक्स्ट type of the cells are the granulocytes. The granulocytes, their precursor is also formed in the bone marrow as the precursors of all the different cells that is formed in bone marrow, and then they are released in the tissue. ठीक है, उसके बाद आगे आपके मास सेल भी जो है डायरेक्टली आपके स्टेम सेल से बनेंगे एंड दीज आर देन सेंड इनटू द ब्लड इसे सीधे आपके टिश्यू में इनको भेज देते हैं। Similarly, the monocytes, they are also the precursor is formed in the fetal liver in case of the fetus and bone marrow in adult, and then they are released in the circulation. And after circulation, जो monocytes, अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब monocytes थोड़ा सा क्लास में बताया था मैक्रोफेजेस, तब भी मैंने आपको बताया था कि monocytes जो हैं वो थोड़े टाइम तक आपके ब्लड में रहेंगे, बिकॉज दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लड। तो ये थोड़े टाइम तक ब्लड में रहेंगे 7 to 8 आवर्स। उसके बाद ये टिश्यू में जाके जो है वो क्या बना देंगे, आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस बना देंगे। इसी तरह से आपके बाकी जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो भी उसका प्रिकर्सर भी आपका स्टेम सेल्स जो हैं वो बोन मैरो से बनने के बाद वो आपके टिश्यूज में और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिए जाते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैक्रोफेजेस एंड इंटरडिजिटेटिंग सेल्स और द डेंड्राइटिक सेल्स। And these are what? These all are APC or the antigen presenting cells. And lymphocytes, they are also formed in the blood and then sent into the tissue also when they are required. So this is a generalized diagram which is showing the origin of the cells of the immune system. ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है and you should know the definition of the hematopoiesis, that is the formation of the different types of the cells from the hematopoietic stem cells is called as the hematopoiesis. ठीक है, तो जब fetal stage पे ये जो प्रोसीजर है that is the hematopoiesis, ये कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, whereas in adult it takes place in the bone marrow. Now coming to the different types of the cells of the immune system in detail. First of all, we will discuss the lymphoid cells. Lymphoid cells, you all know, it will includes the B cells and the T cells. So discussing these in detail. सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मैंने इसको अलग से कॉपी में नोट किया ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। सो द इम्यून सिस्टम, द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन आर द लिम्फोइड सेल्स एंड अनदर आर द माइलॉइड सेल्स. All the types of cells that is the lymphoid cell as well as the myeloid cells, they all are formed in the bone marrow and then are sent to their respective destination. So if we talk about the lymphoid cells, the main type of lymphoid cells are the B cells, the T cells, the null cells and the dendritic cells. Whereas the myeloid cells, this includes different types of cells such as the neutrophil, eosinophil, basophils, blood platelets, mast cells and the monocytes. Now coming to the first one, that is your lymphocytes. So the lymphocytes, you all know lymphocytes are the one of the most important blood cells which take part in the immune system. So lymphocytes, they form the 20 to 45% of the WBCs and they include the 99% of the leukocytes in the bloods. ठीक है, तो WBCs जो ल्यूकोसाइट्स हैं आपके ब्लड में, उसका 99% जो है दे इंक्लूड योर लिम्फोसाइट्स.
the human blood that have approximately 10 to the power 12 lymphocytes. इतने ज्यादा lymphocytes जो हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, एंड आउट ऑफ दीज 10 to the power 9 आर रिन्यूड डेली. मीन्स कि बहुत सारे lymphocytes रोज के रोज बनते भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो अपना लाइफ स्पैन करने के बाद जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, उनका जो है एपोप्टोसिस होता है, एंड दे आर रिन्यूड डेली. नाउ 1% ऑफ द लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है, सिर्फ इनमें से जो लिम्फोसाइट्स हैं सिर्फ 1% जो है वही आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. बाकी जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. नाउ lymphocytes, they are divided into two categories depending upon the size and the lifespan. The lymphocytes, they are on the basis of the size, they may be small, medium or large. The small, they have the size of 5 to 8 micrometer. Medium have the size of 8 to 12 micrometer, and large, they have the size of the 12 to 15 micrometer. Now, depending upon the lifespan, they can be categorized into two categories. The short-lived lymphocytes, जिनकी लाइफ जो होती है वो छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स की होती है, वो आएंगे आपके शॉर्ट-लिव्ड lymphocytes. और लॉन्ग-लिव्ड lymphocytes कौन से होंगे? जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 3 years या ज्यादा होगी. अब यू ऑल नो, ये आप पहले से जानते हैं, मैंने बहुत बार क्लास में बताया कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग होती है, तो वो आएंगे आपके लॉन्ग-लिव्ड lymphocytes. नाउ कमिंग टू द बी सेल्स. सबसे पहले हम बी सेल्स डिटेल में स्टडी करेंगे. सो बी सेल्स जो है हमारे वो मैंने थोड़ा सा इसको ग्राफिकली लिखा है तो आपको ऐसे समझना आसान रहेगा. बी सेल्स जो है वो हमारे हिमेटोपोएटिक टिश्यूज में ही उनका ओरिजिन होता है, एंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स. यू ऑल नो, जो हमारा बी सेल होता है उसके सरफेस, बी सेल के सरफेस पे हमेशा ही क्या होंगे? एंटीबॉडी एज अ रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो द बी सेल्स, व्हेन एनी एंटीजन दैट इंटरैक्ट विद द बी सेल्स, दैट divide into two types of the cells. One is the plasma cell and we also call it as the effector cells. ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ उसका ये एक रिव्यू है. And the next type of the cells which are formed by the B cells are the memory B cells. ठीक है, तो B cells कौन से हो गए? 2 मेन टाइप्स के, एक हो गए प्लाज्मा सेल्स और एक हो गए मेमोरी सेल्स. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स वो होंगे जो कि एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और मेमोरी सेल्स वो वाले होंगे जो इस वाले एंटीजन का रिकॉल करने में हेल्प करेंगे. जब ये एंटीजन दोबारा आएगा तो मेमोरी सेल्स इसको एकदम से रिकॉल कर लेंगे और एकदम से जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा. नाउ द बी सेल्स, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. सो बोन मैरो में जब बी सेल्स बनते हैं तो सबसे पहले बनेगा आपका प्रो बी सेल. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स. ठीक है, ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू उसका देखना है, अदरवाइज बहुत डिटेल में इसको हमने नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा है आज तक. जितनी बार भी इम्यूनोलॉजी का पेपर आया है तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट वी शुड नो दैट हाउ द मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स दैट टेक्स प्लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रो बी सेल इज फॉर्म्ड लाइक दिस. उसके बाद प्रो बी सेल जब बनेगा, न्यूक्लियस हमेशा रहेगा बीच में, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है. सो प्रो बी सेल में नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन. इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? दैट इज द एंटीबॉडी. क्योंकि इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, वो क्या है? एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. तो उसकी जीन्स की क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी. रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा कि जो आपका बी सेल है उसके सरफेस पे अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ओनली वन टाइप ऑफ सरफेस रिसेप्टर और द इम्यूनोग्लोबुलिन इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन दिस सरफेस एंड इट इज कॉल्ड एज द IgM. ठीक है, तो यहां पर बी सेल के सरफेस पे कोई भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल नहीं है, और यहां पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, और कौन सा वाला है? IgM. सो IgM इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल. अब ये वाला बी सेल जिसके सरफेस पे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बन चुका है, दिस इज नाउ कॉल्ड एज इम्यूनोकॉम्पिटेंट. इम्यूनोकॉम्पिटेंट मीन्स अ बी सेल विच कैन माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ बी सेल इज कॉल्ड एज द इम्यूनोकॉम्पिटेंट. बट एट दिस स्टेज इट इज वर्जिन और नेव. मीन्स कि अभी इसकी किसी भी
एंटीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई है, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज अ वर्जिन और अ नेव. नेव मीन्स अ न्यू बी सेल्स विच हैव नॉट इंटरेक्टेड with any type of the antigen molecule. Now what happens next? In the next step, the immunoglobulin isotype switching that takes place. अब ये सारे के सारे steps जो है ये बहुत डिटेल्ड में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा इसका समझना है कि स्टेप में हो क्या रहा है. अब इस स्टेप में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप स्विचिंग में क्या होता है कि जो पहले हमने बी सेल बनाया था, बी सेल जो था उसके सरफेस पे सिर्फ आईजीएम जो था वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट था. लेकिन जब इसकी आइसोटाइप स्विचिंग होती है तो इस प्रोसीजर के बाद इसके सरफेस पे ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी, there are 5 types of immunoglobulin, that is the IgD, IgM, IgG, IgA and IgE. These all types of the immunoglobulins are now being presented on the surface of this B cell. ठीक है, तो जब इसमें आइसोटाइप स्विचिंग होगी तो इसके सरफेस पे ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिप्रेजेंट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, there is a reassortment of the immunoglobulin gene. नेक्स्ट स्टेप में इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स की रीअसॉर्टमेंट होती है. अब ये इतना डिटेल में हमने नहीं करना है, बट हमने थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो रिमेंबर रखने हैं. अब इसमें क्या होगा, अब जब रीअसॉर्टमेंट होती है तो ये बी सेल जो है नाउ इट बिकम कैपेबल दैट इट कैन रिएक्ट विद एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एपिटोप. ये किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ एपिटोप जो कि एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जो है वो तैयार है. ठीक है, जब इसमें क्या होगी, रीअसॉर्टमेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट हैपेंस टू द बी सेल, allelic exclusion that takes place. Now what is this allelic exclusion? Now in this allelic exclusion what happens, that this B cells that become programmed to represent only one type of immunoglobulin on its surface. ठीक है, तो अब ये एक ही तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन अपने सरफेस पे बनाएगा, चाहे वो IgA हो, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, IgA, IgA, IgA. जबकि इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो थे इसके सरफेस पे रिप्रेजेंट हो रहे थे, सभी के सभी 5 टाइप्स के, IgG, D, A, E. ठीक है, लेकिन जब इसमें अलीलिक एक्सक्लूजन होता है उसके बाद ये जो है वो उस कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में हमें ये ब्लड सेल्स में मिलेगा. दैट मीन्स a single B cell will represent only one kind of immunoglobulin or the antibody molecule over its surface. ठीक है, इसके सरफेस पे एक ही तरह का जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो IgA हो, चाहे वो IgG हो या कोई भी हो. ठीक है, सो दिस हैपन्स आफ्टर अलीलिक एक्सक्लूजन. ठीक है, ये IgA, IgG या IgM जो है वो क्या है, आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स हैं उसके डिफरेंट अलील्स हैं. ठीक है, तो सिर्फ एक ही अलील जो है वो ही अब रिप्रेजेंट होगा, बाकी अलील जो है वो साइलेंस हो जाएंगे. सो दैट दिस B cell that represent only one kind of allele on its surface, that may be any kind of the immunoglobulin or any kind of the antibody molecules. Now the next type of the B cell is the plasma B cells. You all know what is plasma B cells. जो plasma B cells है वो जब जैसे ही ये हमारा B cell जैसे ही किसी एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा, एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी प्लाज्मा सेल्स जो है वो 1 or 2 days तक ही सर्वाइव करता है एंड इट रिप्रोड्यूस मेनी काइंड ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. जब ये वाला किसी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट जो इसका प्लाज्मा सेल है, बड़ा सेल है, बड़ा न्यूक्लियस है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड इट विल फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स. नाउ दिस द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स व्हिच इट फॉर्म्स आर आइडेंटिकल टू द antibody molecules which are present over the surface of this precursor or this B cells from which they are formed. ठीक है, तो ये जो antibody molecules है these are formed in a very high speed. Approximately this plasma cell can produce 2000 antibody molecules per second. एक सेकेंड में 2000 antibody molecules जो बना सकता है. ठीक है, so बी सेल्स जब आपके प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे साथ ही के साथ वो मेमोरी सेल्स भी बनाएंगे. मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड दे रिमेन इन अ डॉर्मेंट कंडीशन. वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहेंगे आपके
टिश्यूज में, और वो तभी एक्टिवेट होंगे या उनका रिकॉल तभी होगा जब वो सेम एंटीजन जो है दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द बी सेल मैच्योरेशन. तो आपने इसको थोड़ा सा नजर मार लेनी, लेकिन ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. आप इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर क्वेश्चन आ भी जाता है बी सेल मैच्योरेशन के ऊपर तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और बाद में आपने बी सेल का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो आपने दे देना है, उसको डिटेल में डिस्कस करना है. तो इन सभी स्टेप्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि बी सेल्स की मैच्योरेशन कैसे हो रही है. बोन मैरो आया, बोन मैरो से आपका प्रो बी सेल हमारा बना. उस प्रो बी सेल में पहले रीअरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन हुआ, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जीन की आइसोटाइप स्विचिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, रीअसॉर्टमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन हुई, और अल्टीमेटली क्या हुई, अलीलिक एक्सक्लूजन. दिस वाज द लास्ट स्टेप. अगर आपको याद हो, ये मैंने अभी बताया आपको, लास्ट स्टेप क्या था आपका, दिस वाज द अलीलिक एक्सक्लूजन. तो मैंने सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही फ्लो चार्ट में बता दिए कि ये स्टेप्स हमारे होते हैं. उसके बाद हमारा एक प्रो बी सेल जो है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ बी सेल विच इज प्रोग्राम्ड और विच इज डेस्टिन्ड टू प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन इट्स सर्फेस. ठीक है. तो ये सारे स्टेप आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बी सेल एंड द टी सेल. तो ये एक मैंने कॉमन सा डायग्राम बनाया है जो कि बी और टी सेल दोनों के लिए कॉमन होगा, और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो सेम रहेंगे. जैसे कि यू ऑल नो दीज ऑल आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स, बी सेल्स एंड द टी सेल्स. सो वी हैव अ न्यूक्लियस एंड हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो भी टिपिकल एनिमल सेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो इसमें हमें देखने को मिलेंगे, वेदर इट इज अ बी सेल और अ टी सेल. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्री राइबोसोम्स हैं, एंड दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव द एसोसिएटेड राइबोसोम्स विद देम. गोल्जी बॉडी आर आल्सो देयर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड द टी सेल. ठीक है. दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा. तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द बी एंड द टी सेल. अगर क्वेश्चन हमें आ जाता है तो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बी और द टी सेल, तो आपने डायग्राम यही बनाना है, चाहे क्वेश्चन बी सेल के लिए आता है या टी सेल के लिए आता है, तो यही बनाना आपने. ठीक है. वैसे तो जो क्वेश्चन है मैंने बहुत बार क्लास में बताया है और पहले भी बता दिया वीडियो में कि द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी सेल एंड द टी सेल. तब आपको डायग्राम देने की जरूरत नहीं है. पॉइंट वाइज बुक में आपकी बुक में डिफरेंसेस दिए हुए हैं. जब आप पूरा स्ट्रक्चर कर लेंगे इसका तो ऑटोमेटिकली आपको इसके डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे. लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बी एंड टी सेल, तब आपने ये डायग्राम देना है और उसमें ये सारे कैरेक्टर्स शो करने हैं. एंड वी विल ऑल्सो शो दैट हाउ द बी सेल एंड टी सेल दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ओवर द बी एंड द T cells. So these receptor molecules are actually the CD molecules. ये भी मैंने क्लास में आपको बताया. CD means cluster of differentiation. So cluster of differentiation, simply you remember that what are these? These are the receptor molecules, the different kinds of the CD molecules or the different kinds of the receptor molecules which are present over the surface of the B and the T cell. So first coming to the molecules of the surface, molecules which are present on the surface of the B cell. So the most important surface molecule is CD45, or we can say it as B220. This is the earliest marker, earliest receptor which is present on the B cell lineage and it appears during maturation. इसके maturation में appear होता है ये, और ये इसके throughout life span में हमें देखने को मिलेगा. It will help in the signal transduction. So this is what? This is CD45, a receptor molecule, very important receptor molecule which is present over the B cell. Next is the class 2 MHC molecule. You all know all these cells of the जो भी आपके बी सेल्स हैं या आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनके ऊपर MHC क्लास 2 जो है वो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. ठीक है. सो दिस परमिट द क्लास 2 मॉलिक्यूल, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, दिस परमिट्स द बी सेल टू बिहेव एज एन APC. इसकी वजह से वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बिहेव करता है जो कि टी सेल को जो है वो किसी भी एंटीजन को प्रेजेंट करके दे सकता है. नेक्स्ट इज द CRI और द CD35 एंड द CD21. These are what? These are again
the receptor molecule which are present over the B cell, and they are receptor for the complement products. complement products क्या है, complement क्या है, complement जो है वो आपके अगेन जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के, जो डिटेल में आपको नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर्स में आएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो उनके लिए रिसेप्टर हैं ये, दैट इज द CD35 एंड CD21. नेक्स्ट इज द CD32. CD32 इट इज द रिसेप्टर फॉर द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ द FC रीजन. FC रीजन कौन सा होता है, ये वाला रीजन. ठीक है, तो ये जो FC रीजन है इम्यूनोग्लोबुलिन का, स्पेशली IgG का, तो उसके इस रीजन के लिए ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है. ठीक है, नेक्स्ट इज द B7. B7 इज व्हाट, इट इज अ को-स्टिमुलेटरी molecule which interacts with the CD28 on TH cell. तो B सेल के ऊपर ये B7 वो रिसेप्टर है जो कि TH सेल, T हेल्पर सेल के ऊपर जो CD28 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा. सो दिस इज द रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो कि इसकी इंटरेक्शन में हेल्प करेगा B सेल की TH यानी T हेल्पर सेल के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द the B cell. Now coming the T cell. तो T cell की बात कर लेते हैं. T cell की मैच्योरेशन कैसे होगी, आपको पता है ये T cell जो है वो इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आएगा वो आपके हेमोपोएटिक टिश्यू जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट है वहां से आएगा, और फिर वो आपके थाइमस में जाएगा. थाइमस में वो कॉर्टेक्स में इमेच्योर होता है, लेकिन फिर बाद में उसको मेडुला में सेंड कर देते हैं, किस थाइमस के, जहां पे उसकी प्रॉपर मैच्योरेशन होती है. सो when the T cells, the immature T cells, that is the thymocytes, when they migrate from the cortex to medulla, they undergo a series of differentiation in the thymic microenvironment. जो thymus का microenvironment है वहां पर उसमें बहुत सारे changes आते हैं. वो series of changes यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं देना है कि कौन कौन से changes है, but we will simply write that they undergo a series of differentiation in the thymic environment, which with the help of which they get converted from the immature to the mature state. Now during this maturation, the thymocyte or the T cells, they acquire the different types of the receptor molecules such as the CD7, CD2, 3, CD1, CD4, CD8, and most important the TCR. TCR is the T cell receptor. हमने बहुत बार क्लास में ये बना लिया है. This is what? This is the T cell receptor. और उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी होगी. फिर मेच्योरिटी के बाद क्या होगा, ऑन दी मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो उसमें बेसिकली सबसे 2 मेन टाइप्स ऑफ जो टी सेल्स है वो हमें देखने को मिलेंगे. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाइमोसाइट्स है उनमें भी 2 तरह के जो थाइमोसाइट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन आर दी TH cells and another are the TC cell. And you know what are TH cells? TH cells वो होते हैं जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, और TCR तो होगा ही, बिकॉज TCR इज द T cell receptor which is common to all the type of the T cell. So TH जो है उस पे एक और इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है, दैट इज CD4. और जो TC है, T साइटोटॉक्सिक सेल है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, CD8. ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट द TC cell have the TCR plus CD8 receptor and the TH cell, T helper cell, that have the TCR plus the CD4 receptor. So this is how the maturation of the T cells that takes place. Now coming to the structure. अब इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर करेंगे बच्चों, तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल वही आएगा. पहले स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता तो हमने फिर से यही वाला डायग्राम बना देना जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है बी और टी सेल का सेम है, और जो डिफरेंस है वो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, तो वो हम अलग से बता देंगे. Now the different types of the receptor molecules which are present over the T cell. First is the Thy1. This is the earliest marker which is earlier marker, or we can say this is the earlier receptor which is present over the T cell during its maturation and it remains throughout its lifespan. बिल्कुल ये Thy1 उसी तरह से है जिस तरह से हमारा जो था वो ये था CD45 जो सबसे पहले बी सेल के ऊपर अपीयर होता है. ठीक है, जैसे ये CD45 बी सेल के ऊपर सबसे पहले आने वाला मार्कर है, उसी तरह से टी सेल के ऊपर सबसे पहले आने वाला मार्कर जो है या रिसेप्टर मॉलिक्यूल वो कौन सा है, Thy1. Now the next is the CD3. It is again
मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स विच एसोसिएटेड विद द टी सेल रिसेप्टर, जो टीसीआर के साथ एसोसिएटेड है, ये वो वाला आपका मार्कर है या वो वाला आपका रिसेप्टर है। नेक्स्ट इज द CD28। CD28 वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, CD28 वो वाला मार्कर है या वो वाला रिसेप्टर है जो कि B7 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखो लास्ट में लिखा था हमने, B7 जो है वो इंटरेक्ट करेगा CD28 जो कि TH के ऊपर है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है हमारा CD28 ये इंटरेक्ट करेगा बी सेल के ऊपर जो हमारा मार्कर या हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है B7। एंड द लास्ट वन इज द CD45। दिस इज अ मार्कर और दिस इज अ रिसेप्टर विच हेल्प इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ दिस टी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब आएगा तो हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डायग्राम बना देना है और साथ में हमने टी सेल के सरफेस पे जो मार्कर्स या रिसेप्टर्स है उसके बारे में बताना है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ओवर द बी सेल। सो दिस इज द बी सेल एंड दिस इज द टी सेल। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट सब पॉपुलेशन ऑफ द टी सेल, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट सब पॉपुलेशन ऑफ द टी सेल्स। तो टी सेल्स जो है वो उसकी डिफरेंट सब पॉपुलेशन होती है। बी सेल की सिर्फ 2 ही होती है, बी सेल या तो इफेक्टर सेल बनेगा या आपका मेमोरी सेल बनाएगा, लेकिन टी सेल जो है वो 4 तरह की सब पॉपुलेशन बना सकता है। फर्स्ट इज द टी हेल्पर सेल, नेक्स्ट इज द टी cytotoxic cell, another is the T suppressor cell, and the last one is the T memory cell. Now T helper cell, out of the T cells, the 75% of the T cells, they are of the T helper type. They secrete different types of the lymphokines, different kinds of the chemicals which stimulate the other types of the cells. You all know T helper का मतलब ही क्या है, दूसरों की हेल्प करना। तो ये हेल्प करेगा बाकी सेल्स के स्टिमुलेशन में, चाहे वो टीसी हो चाहे वो आपके बी सेल्स हो, उनके स्टिमुलेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा मार्कर, इसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, CD4। ठीक है, तो ये टी सेल है, टी सेल के ऊपर ये आपका TCR है, दैट इज द टी सेल रिसेप्टर, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है यहाँ पे, वो है CD4। ठीक है, और CD4 क्या करता है, इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ दिस TH सेल टू द MHC क्लास 2। ठीक है, MHC क्लास 2 के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा ना। ये जो TH होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, आपका MHC क्लास 2 जो किसी APC के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द TC और द साइटोटॉक्सिक और द किलर T सेल्स। ये रिलीज करेगा परफोरिन्स। परफोरिन्स आर द केमिकल्स विच मेक्स पोर्स इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, साइटोटॉक्सिक होती है, यानी कि ये दूसरों को किल कर सकता है। तो ये ऐसे केमिकल रिलीज करेगा विच आर लिम्फोटॉक्सिन। लिम्फोटॉक्सिन मीन्स दूसरे सेल्स को किल करेगा। ठीक है, जो आपके सेल्फ अल्टर्ड सेल्स होते हैं उनको ये किल करता है। तो इसके सरफेस पे कौन सा रिसेप्टर होता है, दैट इज दी CD8। तो इसकी वजह से इसको CD8 सेल भी बोलते हैं, और TH को आप CD4 रिसेप्टर की प्रेजेंस की वजह से CD4 सेल भी कहते हैं। So what does CD8 that do? That help in binding of this CD8 to the MHC class 1 molecule. ठीक है, MHC class 1 which is present on all the nucleated cells, and MHC class 2 which is present on the APC and the other cells of the immune system, and also help in the signal transduction. Now the next is the T suppressor cell. T suppressor cells कौन से होते हैं, इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। दे इन्वाइट द एंटायर इम्यून सिस्टम, ये एंटायर इम्यून सिस्टम में घूमते रहते हैं, एंड दे कीप अ चेक ऑन द बी एंड टी सेल्स कि ये बी और टी सेल्स आपके बॉडी के अपने ही सेल्स को अटैक ना करें। अगर ऐसा होता है अपने बॉडी के वो अपने ही सेल्स को अटैक करता है, सो टी सप्रेसर सेल व्हाट दे डू, दे सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ दोज B and T cells which attack body's own cell. So it plays a very important role in the autoimmune system also, कि ये अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक होने से बचाता है ताकि अपना ही इम्यून सिस्टम जो है अपने बॉडी सेल्स को अटैक ना कर सके। द लास्ट वन इज द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेमोरी सेल्स आपके बी सेल्स के कैसे बनता है। तो टी सेल्स के जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनकी एज जो है वो ज्यादा होती है, एंड दे हेल्प इन दी रिकॉल ऑफ द एंटीजन। ठीक है, जब एंटीजन दोबारा से आएगा तो उसकी रिकॉल में वो हेल्प करते हैं ताकि वो दोबारा आएगा तो उसके लिए एकदम से सेंसिटाइज होंगे और फिर एकदम से जो है वो टी सेल की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दीज आर दी टी सेल्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब वो सेल्स, वो लिम्फोसाइट्स जो ना बी सेल्स होते हैं ना टी सेल्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज द नल सेल्स। ठीक है, सो नल सेल्स
What are the null cells? Null cells are those cells which don't have the B or the T cell lineages. जिसके ऊपर ना B cells के रिसेप्टर होंगे ना T cells के रिसेप्टर होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? null cells. And the most important null cells are the NK cells, that is the natural killer cells. ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि सेल्फ अल्टर्ड सेल्स को जो है वो मारने में मदद करते हैं। और ये किस तरह से काम करते हैं ये देखेंगे हम। इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो ना वो टी सेल्स TH के ऊपर होते हैं, ना TC के ऊपर होते हैं, और ना ही आपके बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो यहां पर है। ठीक है, तो इसलिए इसको नल कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर वो कोई भी रिसेप्टर्स नहीं है जो इन सब के ऊपर है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही तरह का रिसेप्टर होता है, दैट इज दी CD16। So the lymphocytes having the CD16 receptor over its surface are called as the null cells, and specifically the natural killer cells. So natural killer cells is a type of a null cell. अब हमारा कोई भी टारगेट सेल है, जैसे हमारा ये कोई भी एंटीजन है, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, इसके सरफेस पे जो है वो एपिटोप्स लगे हुए हैं। ठीक है, दीज एपिटोप्स, यू ऑल नो व्हाट आर एपिटोप्स। तो एपिटोप्स को ये इस तरह के जो बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी फॉरेन बॉडीज हैं, उसको किल करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? ये इसके सरफेस पे आके कौन जुड़ जाता है? एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल। सो दिस CD16 which are present over the surface of NK cells that have receptors for this region of the antibody molecule. ये वाला रीजन जो होता है, नीचे वाला रीजन, दिस इज द FC रीजन। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये जो बेस वाला रीजन है, FC रीजन, ये वाला जो रीजन है ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का इसके साथ अटैच करता है, दैट इज दी CD16। तो व्हेन इट अटैचेस ऑन द डिफरेंट CD16 मॉलिक्यूल, ये फिर इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा और इसकी सेल लाइसिस कर देगा। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ द इंटरैक्शन और सच टाइप ऑफ द किलिंग इज कॉल्ड एज द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, और वी कैन से इट एज सिंपली ADCC। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको टर्म जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वन वर्ड में ऐसा पूछ लेते हैं। सो दिस इज द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी the antibody molecules present over the null cells, they are responsible for the lysis or the killing of the target cell, which may be a foreign cell. Now how it works, ये तो हमारा एक वे हो गया इसका वर्क करने का। अब दूसरा वे क्या है इसका काम करने का? किसका? आपके ये वाले सेल का, दैट इज द योर नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करेगा? जैसे ये हमारा नॉर्मल सेल है, आपका नॉर्मल सेल जो है वो नॉर्मल सेल के ऊपर हमेशा ही, अगर ये न्यूक्लिएटेड है तो इसके ऊपर हमेशा ही क्या होगा? क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अभी क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, और दूसरा जो है कुछ और रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन विच इज अ नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर एक नॉर्मल सेल है तो उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होंगे और नॉर्मल नंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। अब होता क्या है, ये आपका कौन सा है? दिस इज दी योर NK cell having the CD16 over its surface। अब ये NK cell जो है इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, ये इसके अलावा कुछ एक और रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ये Li49। ये Li49 जो है वो इंटरैक्ट करता है आपका MHC क्लास 1 के साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये इसको नेगेटिव सिग्नल देता है कि इसको नहीं मारना है। नेचुरल किलर सेल जो है इसका ये रिसेप्टर इसको सिग्नल देगा कि इसके ऊपर MHC क्लास 1 प्रेजेंट है, तो हमने इसको नहीं मारना है। जबकि ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसके ऊपर एक और ये इंटरैक्ट करेगा दूसरे रिसेप्टर के साथ जो कि इसके NK सेल के ऊपर प्रेजेंट है। इट गिव अ पॉजिटिव सिग्नल कि इसको मार देना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल आपस में कैंसिल हो जाते हैं इफ द सेल इज अ नॉर्मल सेल। ठीक है, ये वाला सिग्नल दे रहा है कि इसको आपने किल कर देना है, और ये सिग्नल दे रहा है कि इसको नहीं किल करना है, बिकॉज इट इज प्रेजेंटिंग अ नॉर्मल नंबर ऑफ द MHC मॉलिक्यूल विच आर नॉर्मल टू अ नॉर्मल सेल। तो इस सेल की किलिंग नहीं होती है बाय द नेचुरल किलर सेल। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस सेल इज एबनॉर्मल सेल? अगर ये सेल हमारा एबनॉर्मल है, मान लीजिए इट इज अ ट्यूमरस सेल और अ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, देन व्हाट हैपेंस? If it is abnormal cells, then it will display lesser number of MHC class 1 molecule over its surface.
एक नॉर्मल सेल के ऊपर ज्यादा एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एबनॉर्मल सेल के ऊपर जो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है। जब इसका नंबर कम हो जाएगा तो यहां पर जो नेगेटिव सिग्नल जा रहा था बाय दिस एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल वो नेगेटिव सिग्नल नहीं जाएगा और पॉजिटिव सिग्नल तो पहले ही जा रहा है कि इसको किल कर देना है, क्योंकि यहां पर जो हमारा सेल्फ अल्टर्ड सेल है या ट्यूमरस सेल है या वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो नॉर्मल सेल में नॉर्मल था वो यहां पर क्या बन गया है, एबनॉर्मल बन गया है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इसको किल कर दें बिकॉज इट हैव एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन ओवर इट्स सरफेस। एंड द सेकंड रीजन फॉर किलिंग this cell by the NK cell is that it have a lesser number of the MHC molecule। इसके ऊपर MHC molecule, MHC class 1 molecule भी कम है, तो ये वाला सेल जो है इसको पता लग जाएगा कि ये सेल जो है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है और हमने इसकी किलिंग कर देनी है। पॉजिटिव सिग्नल चला गया यहां से तो ये इसको फिर इसकी सेल लाइसिस कर देगा, इसकी किलिंग कर देगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स है जिस तरह से आपका एनके सेल और जो नेचुरल किलर सेल्स है दैट किल्स द सेल्फ अल्टर्ड सेल्स और द सेल्स विच आर नॉट नॉर्मल टू अवर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द lymphocytes, that is the B lymphocytes and the T lymphocytes.